زراعت کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، لیکن آج یہی شعبہ ایک ایسے بحران سے دوچار ہے جس کے اثرات صرف کسان تک محدود نہیں بلکہ براہ راست عام آدمی کے دسترخوان تک پہنچ رہے ہیں۔ ملک میں زراعت مجموعی قومی پیداوار کا 23.4% حصہ رکھتی ہے اور قریباً 33% لیبر فورس کو روزگار بھی فراہم کرتی ہے، مگر کسان گندم کی مناسب قیمت نہ ملنے، مہنگی بجلی، کھاد کی بڑھتی قیمتوں، پانی کی کمی، زرعی اجناس پر انکم ٹیکس اور حکومتی پالیسیز میں غیر یقینی کے خلاف احتجاج پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ موجودہ پالیسیز سے انہیں کھربوں روپے کا نقصان ہوا اور گندم کی کاشت میں 40% تک کمی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کبھی چینی کبھی گندم سستی برآمد کر کے وہی مہنگی درآمد کرتی ہے۔ کسان اتحاد نے 25 ستمبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ صرف بہتر قیمت نہیں بلکہ پوری زرعی پالیسی پر نظر ثانی ہے، لیکن اس بحران کی دوسری تصویر اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس پاکستان کی 63% آبادی یعنی قریباً 16 کروڑ افراد صحت بخش اور متوازن خوراک خریدنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے۔ گھرانوں کی حقیقی آمدنی میں قریباً 13% کمی ہوئی اور غربت کی شرح 21.9% سے بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانی گھرانے خوراک کی مقدار اور معیار دونوں کم کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں غذائی قلت اور نشو و نما کے مسائل پہلے ہی سنگین ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں صحت بخش خوراک اور کم قیمت پر دستیاب ہونے کے باوجود اسے خریدنے کی صلاحیت رکھنے والے پاکستانیوں کی تعداد خطے میں کم ترین سطح پر ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کسان کو اپنی پیداوار کی مناسب قیمت کیوں نہیں مل رہی؟ عام شہری اس خوراک کو خریدنے کی استطاعت کیوں نہیں کر پا رہا؟ اگر ایک طرف کسان فصل اگانے سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو دوسری طرف کروڑوں لوگ صحت بخش خوراک کا قاصر ہوں، تو پھر یہ محض زرعی یا مہنگائی کا بحران نہیں بلکہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، معاشی پالیسی اور حکومتی ترجیحات کا بنیادی بحران ہے۔ یہ بحران کیوں ہے؟ کیا اس کا حل موجود ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: زراعت معیشت کا 33% لیبر فورس منسلک، مگر پھر بھی کسان شدید پریشان۔ 16 کروڑ افراد صحت بخش خوراک خریدنے سے قاصر، کسان سے صارف تک پورا زرعی نظام بحران کا شکار کیوں؟ زیغم صاحب، یہ جو صورتحال ہماری زراعت کی موجود ہے، ہمیں تو ساری زندگی یہی پڑھتے گزر گئی کہ یہ بیک بون ہے ہماری معیشت کی، مگر اس وقت جو حالات ہیں، مہنگی کھاد کی بات کریں، بجلی کی قیمت کی بات کریں، کسان اب ٹیکس کے اوپر بھی بل بلا رہا ہے، کسان کے لیے بھی منافع نہیں ہے، جو پلیٹ میں فوڈ آنی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، صحت بخش صورتحال بھی نہیں، تو یہ اتنا بوجھ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کیا دراصل؟ عائشہ، جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک سیکٹر کی بات نہیں کرتے، ہم 9 کروڑ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہر تیسرے پاکستانی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے 78% ایسے ہیں جن کی زمین 5 ایکڑ سے بھی کم ہے، اور یہ وہ 9 کروڑ ہیں جو گونگے ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جن کا کوئی پالیسی پر اثر رسوخ نہیں ہے، جو یونینائز نہیں ہے، جو اکٹھے نہیں ہو سکتے، جو حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور حکومت کھل کر کھیل رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 9 کروڑ پاکستانیوں کا روزگار کا پورا ماڈل کلیپس کر چکا ہے۔ پاکستان میں ایگریکلچر کا ماڈل کلیپس کر چکا ہے۔ جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور آمدنیاں اخراجات کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھی۔ کلائمیٹ چینج نے فصلوں کی تباہی بول دی ہے، اور حکومت کھڑی ہے آڑھتیوں کے ساتھ، امپورٹرز کے ساتھ، ایکسپورٹرز کے ساتھ اور صنعت کاروں کے ساتھ، اور حکومت مدد کرتی ہے ان سب کو کہ وہ اپنا مال بنائیں، کسانوں کو برباد کر کے، کسانوں کی فصلوں کو برباد کر کے، ان کی ایکسپلائٹیشن کر کے۔ یہ وجہ ہے پاکستان میں زراعت کی بربادی کی۔ گندم میں 3 سال تک پاکستان میں جو گندم کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ یہ 3 سال گندم کی جو قیمت تباہ کی گئی وہ پالیسیوں کے ذریعے کی گئی، کوئی فطری اس کی وجہ نہیں تھی۔ جب بھی بین الاقوامی ادارے کسانوں کے خلاف کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، زراعت کے خلاف کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو حکومت دوڑیں لگا کے مان لیتی ہے۔ لیکن جب وہی دوسرے سیکٹرز کی بات کرتے ہیں، جب وہ ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں، جب وہ سروس سیکٹر کی بات کرتے ہیں، جب وہ بڑے ذمہ دار کی بات کرتے ہیں،
तो हुकूमत सुनने को भी तैयार नहीं होती। ये कितना बड़ा क्राइसिस है जो पाकिस्तान में गुर्बत को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की तरक्की को पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोई असर सूख नहीं है किसान का, तो इसलिए मामला चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मामला सैगम साहब, ये बहुत हॉरिफिक नंबर्स हैं। ये किस तरीके से हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो इतनी आवाम की दुश्मन हो कि आपकी खाने की प्लेट से खाना ही गायब हो जाए? मतलब है जो नंबर्स हैं वो हिला देने को काफ़ी। अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, पॉलिसीज़ की आज भी डायरेक्शन नहीं है, तो एक हुकूमत क्या सलाहियत ही नहीं है? ये इतना कॉमन सोचने की सलाहियत नहीं है कि बेसिक फूड तो आपको देना ही देना है, आप बनाना ही बंद कर दें। जब खुद गर्जी होती है ना, जब खुद गर्जी होती है ना, तो फिर इंसान ये सब कुछ देखना भूल जाता है। ये सब फिगर सबसे पहले हुकूमत के सामने आते हैं, ये सब बर्बादी सबसे पहले हुकूमत को नज़र आती है। लेकिन ये कौन सी हुकूमत है? क्या इनके कारोबार हैं? और इनके कारोबारों का किसानों के साथ, ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? इनके खुद कारोबार किस तरह आबाद होते हैं जब किसानों की बर्बादी होती है? यानी मुल्क की मईशत पर, मुल्क के हालात पर, किसानों पर कोई नज़र नहीं। और सिर्फ किसान का फिर रगड़ा नहीं लगता, ठीक हो गया। किसान की बर्बादी होती है तो साथ में गरीब कंज्यूमर का भी रगड़ा निकलता है। बिल्कुल ऐसा है, उनकी बर्बादी भी साथ में होती है। और ये वो सेक्टर है, देखिए ये वो सेक्टर है जो ये लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में जब मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी चीन लेकर चला गया है, तो ज़राअत वो सेक्टर है जो इस मुल्क की मईशत को उठा सकता है। बिल्कुल ऐसा है, दुरुस्त हो गया। ये उन एक दो चीज़ों में से एक है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, मैं अभी भी इस बात को नहीं समझ पाई कि ज़राअत के बगैर, यानी कि फूड बास्केट के बगैर आप सर्वाइव भी कैसे कर सकते हैं? कहाँ पर ज़रई और माशी पॉलिसी के दरमियान खराबी कहाँ है, या वो दिमाग ही मौजूद नहीं है जो इस मसले का हल निकाल सके? देखिए, मईशत तो दर्जनों पहियों पे चलने वाली गाड़ी होती है ना, तो अगर तो उसके बाकी के तमाम पहिए सही चल रहे हैं और एक में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर तो ये सवाल बनता है कि आखिर ये बहरान क्यों पैदा हुआ। लेकिन जब उसका कुछ भी सही नहीं चल रहा, आप मुझे बताएं ना कि क्या इंडस्ट्री हमारी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करके तो ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला रही है? क्या हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो बड़ी ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं? क्या कोई भी हमारी मईशत की चीज़ जो है वो ठीक है? जो कि ज़राअत के बारे में हम ख़ास तौर पे ये सवाल उठाएं कि जी इसमें भी क्या ख़राबी है? ज़ाहिर है कि जब सारा निज़ाम जो है वो ही टूट फूट का शिकार है, इट्स अ ब्रोकन सिस्टम बेसिकली, तो उससे ज़राअत भी इम्पैक्ट होगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है अब इनको समझने की कोशिश तो कम अज़ कम करनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, वो ये है कि इस वक्त जो किसानों का मुतालबा है ना आशा, वो मैं सुन रहा था उनकी बातें, और वो कह रहे थे कि जी ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ना ये मुस्ताफ़ी हों क्योंकि इनको तो सिरे से इस शोबे का कुछ पता ही नहीं है। तो आशा इतना तल्ख मुतालबा जो है वो तो उस्मान बुज़दार जैसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी किसानों ने नहीं किया था ना, जिनके बारे में उमूमी तासुर यही है कि वो बेकार तरीन चीफ मिनिस्टर थे पंजाब की पूरी तारीख के, उनके बारे में भी इस तरह का मुतालबा नहीं किया गया था। जब हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनकी नींद में मुझे लगता है इतनी गहरी हो गई हुई है कि जो चीज़ें 9 करोड़ लोगों को, जैसे कि अभी कहा ना जैगम ने कि 9 करोड़ लोगों को जो चीज़ मुतासिर कर रही है, और उनकी वजह से फिर जो बाकी के 16 करोड़ हैं ना जी, वो भी इससे बच के तो नहीं रह सकते ना। एक बहुत ही छोटा सा तबका है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का क्या हाल है, उसके दस्तरखान से कभी खाना गायब नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, उसके अलावा तो हर ही कोई मुतासिर होता है। तो पता नहीं, वो हमें तो लगता है कि ये वक्त सर से गुजर चुका है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, ये वक्त आया। बड़ी अहम बात की है, इनको फर्क पड़ता है या नहीं, मगर अगर अवाम की मेज से खाना गायब कर रहे हैं, यानी गंदम और चीनी के साथ भी ऐसी प्ले बुक बनाकर चलेंगे तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। हसन निसार साहब, नंबर्स ये कहते हैं कि 1/4 मईशत ज़राअत से जुड़ी है और 1/3 लेबर फोर्स मुंसलिक है, मगर किसान से लेके सारिफ तक ना कोई खुश है ना कोई मुतमईन है। जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? क्यों बहरान को मजीद बढ़ाया जा रहा है? मेरे सामने जब से सवाल आया है मैं ये मुसलसल सोच रहा हूँ, मैं चूँकि निकलता नहीं बाहर, लैक ऑफ एनर्जी है, वरना मैं आपको सू कर दूँ। मैं थ्रू आउट ये सोचता रहा हूँ, आपने बहरान को सिर्फ ज़रई निज़ाम तक क्यों महदूद कर दिया है? वजह सनती के बारे में क्या ख्याल है, बाकी सब के बारे में क्या ख्याल है? सभी हैं। ये ज़रई पे इतना क्यों आपका फैसला करना मुश्किल है कि कहाँ ज़्यादा निजासत और कहाँ ज़्यादा खबासत है? ये जिसका दिल करे डिबेट कर ले। देखो, ये सब कुछ
ओवरनाइट नहीं हुआ, इसका प्रोसेस जारी है अशरों से। रातों रात ना आबादी होती है ना बर्बादी। याद रखना, एक ख़ास किस्म की सियासत की निजासत और नहूसत है जिसकी स्नो बॉलिंग शुरू है। इसको गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। ये चल यही रहा था, अब उसकी स्नो बॉलिंग हो गई है। मसलसल कह रहा हूँ, खुद से उकता गया हूँ कह कह के कि इस निज़ाम बल्कि आदमखोर निज़ाम में उफ़की और अमूदी बुनियादी और जौहरी तब्दीलियाँ ना लाई गईं तो एक मुख्तसर नज़म सुनो 2 मिसरों की। लिखा है, दीवारे चमन पे फूल न तोड़ो लेकिन तेज हवा आंधी है। दीवारे चमन भी जाएगी और चमन भी। आखिरी बात, ये रिकॉर्ड पे रहे, चंद साल हैं अब सिर्फ, अगर उनमें भी कुछ ना हुआ तो फिर ये तब्दीलियां ले भी आओगे तो कुछ भी रिवर्स नहीं होना। It's not just ज़रई निज़ाम। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। शहजाद चौधरी साहब, किसानों ने गंदम की काश्त में 40% कमी का दावा किया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि नंबर हिला रहे हैं, जब हम आबादी मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं, ज़र मुबादला ज़खायर हमारे पास नहीं है, और अगर किसान भी फसल उगाने से पीछे हट गया तो ये जो हम फूड बास्केट की जो सूरत हाल है, इसकी सिक्योरिटी का कोई हल है फिर हमारे पास? इतनी बेहिसी कैसे हो सकती है? अच्छा आयशा, एक तो ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये वो नारा है जो कि 47 के बाद से हम सुनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम वो जो एक हड्डी रह गई थी, रीढ़ की हड्डी, उसके भी अब पुर्जे कर रहे हैं। तो मईशत हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हाल यही सोच सकता है, वरना तो कोई ये हरकत ना करता। दूसरी बात, ये रिलेटिवली लेट ये ट्रेंड है। यानी गंदम हो, कपास हो, गन्ना हो, जो भी हो, ये मामलात खासतौर पर गंदम के पिछले 4-5 साल में ज्यादा उभर के सामने आए। वरना हमारी हम गंदम में कफील हुआ करते थे। ये फूड सिक्योरिटी का मसला है। इस साल भी 32 मिलियन एकर्स पे लगाई गई है, हमारे यहाँ गंदम लगाई गई है। यानी ये कहते हैं काफी मिकदार है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, करीबन जरूरत की पैदा की गई है, लेकिन बहुत जल्द क्राइसिस में आ गए हम। लेकिन फौरन ही वो जो खरीदी गई है, जो कि आनी चाहिए हमारे हुकूमती निजाम में, वो नहीं आई, गायब हो गई। तो किसने गायब की? आड़तियों ने, दरमियान मिडिल मैन ने गायब की। वो कौन मिडिल मैन है? वो 11 कंपनियां जो कि सामने नहीं आई, जो कि हुकूमत ने अपॉइंट की थी, लेकिन गंदम किसी के पास चली गई। इसकी वजह से शॉर्टेज जो क्रिएट होगी, उसके खौफ से 30 लाख टन गंदम अभी इंपोर्ट करने का हुक्म जारी हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर खेल क्या है कि क्या वही जो गायब हुई है उसी को इंपोर्टेड गंदम हायर प्राइस पे करके क्या मार्केट में दोबारा मार्केट किया जाएगा? तो ये मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट, मैनिपुलेशन ऑफ कमोडिटी, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन मैन। 25 रुपए की रोटी हो चुकी है उसकी। अच्छा, अब इससे अंदाजा ये लगाइए कि जो हमारे पास असल में ये चीनी का राज है ना, चीनी ने रास्ता दिखाया हुआ इस पूरी कौम को कि कैसे तबाह करना है। उसने गंदम वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, यानी हुकूमती निजाम मैनिपुलेटर ने, जैसा चीनी का हम निजाम चलाते हैं, अब गंदम ने भी वो पैसा अब उन लोगों को देना शुरू कर दिया है जो कि चीनी वाले खा रहे थे। और पूरे हमारे सामने उसकी कहानी है, वो जो माफिया उसका, अब गंदम का माफिया भी क्रिएट हो गया इस मुल्क के अंदर। कपास जो इस वक्त में, आज से 5-7 साल पहले की बात है, इस मुल्क में 11 से 12 मिलियन बेल्स जो है वो वो होती थी और एक्सपोर्ट होती थी कपास। अब सिर्फ 5 से 6 मिलियन बेल्स भी हम आ गए हैं और इंपोर्ट करते हैं रॉ कॉटन। इंपोर्ट करके उसको पाकिस्तान के पानियों के साथ धोया जाता है, तैयार करके यान बना के उसके बाद दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी पानी भी हम अपना तबाह कर रहे हैं। गन्ने ने कपास की जगह ले ली और गन्ना पूरे साल की फसल है, ये सिर्फ पानी पीता है। बिल्कुल। तो ये हमारी जो इशराफिया है ना, जिनकी मिलें हैं और जिनके मामलात हैं, ये सब उनका किया कराया खेल है। आम आदमी रगड़ा जाएगा। अब रोटी थी, अब उसके हाथ से रोटी भी छिनती जा रही है। ये है हमारा मसला, इस सारे मसले ठीक हो गया जी। इसका हल हमारे इन बहरानों के पीछे मसाइल किया है वो पैनल ने बड़े अच्छे से सामने रख दिए हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।